Hello students, today in this video lecture we will study about the Sommerfeld relativistic correction. So in our previous video we have studied about the Bohr-Sommerfeld atom model or Sommerfeld relativistic atom model. So in that atom model it was assumed that electron is moving around the nucleus in elliptical orbit with the nucleus situated at one of its foci, and when this electron is moving in an elliptical orbit, then its velocity will change at different points of the orbit. Now due to the change in velocity of electron, the mass of the electron will also vary relativistically. But this concept of assuming electron is moving in an elliptical orbit, it also could not explain the fine structure of spectral lines. So Sommerfeld then applied relativistic correction to the Bohr-Sommerfeld atom model, and in this atom model, relativistic correction in mass of electron was introduced. Now he said that when electron is moving in an elliptical orbit, its velocity is 0.007 times the velocity of light. So variation of mass with velocity cannot be neglected and relativistic correction has to be applied. So when electron is revolving around the nucleus in an elliptical orbit, then velocity of electron will be maximum at perihelion and minimum at aphelion. Perihelion is that distance when your electron will be closer to the nucleus, and aphelion means when electron is far away from the nucleus. So at perihelion velocity of electron will be maximum, and at aphelion the velocity of the electron will be minimum. So due to variation in velocity, mass will vary and we will apply relativistic correction. So after applying relativistic correction, it was found that energy of the system it not only depends upon the total quantum number n, but also upon azimuthal quantum number k. So for a given value of n, तो किसी भी गिवन वैल्यू ऑफ n के लिए वी विल बी हैविंग n डिफरेंट ऑर्बिट्स. हमारे पास n डिफरेंट ऑर्बिट्स रहेंगे जिनकी एनर्जी जो है इट विल ऑल्सो बी डिफरेंट विथ डिफरेंट वैल्यू ऑफ एनर्जी. So this explains the fine structure of spectral line. So for n different orbits we will be having different values of energy. When energy of these energy will be different, then only we can explain the fine structure of spectral lines. So when we are applying relativistic correction, then the path of electron will not be
एंड इट विल नॉट बी ए सिंपल एलिप्स। ये आपका सिंपल एलिप्स ना होके इट विल बी ए प्रिसेसिंग एलिप्स। ये आपका किस तरह से होएगा? दिस इज योर प्रिसेसिंग एलिप्स। तो अब जो है पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका इस तरह से प्रिसेस करता चला जाएगा। जब आप रिलेटिविस्टिक करेक्शन अप्लाई कर दोगे देन इट विल नॉट बी ए सिंपल एलिप्स बट इट विल बी ए प्रिसेसिंग एलिप्स। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारी क्या कहती है कि हमारा मास कैसे वेरी करेगा विद वेलोसिटी? मास m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ये कितनी आ जाएगी? इट विल बी इक्वल टू m0 सी स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। ये आपकी इतनी आ जाएगी। तो जो सोमरफील्ड ने एनर्जी में चेंज डिराइव करा था वो क्या है आपके पास? सो चेंज इन एनर्जी डिराइव्ड बाय सोमरफील्ड। बच्चों ये इक्वेशन आपको ऐसा याद करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? E विल बी इक्वल टू माइनस आर इंफिनिटी एच सी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 1 प्लस एल्फा स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 1 अपॉन के माइनस 3 अपॉन 4n। ये आ जाएगी आपके पास। तो इसमें जो टर्म वैल्यू है टर्म वैल्यू इज गिवन बाय Tn is equal to minus E upon Hc. So this is equal to R infinity upon Z square upon N square 1 plus alpha square Z square upon N 1 plus K minus 3 upon 4N। ये आ जाएगी आपके पास। तो इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आर इंफिनिटी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस आर इंफिनिटी एल्फा स्क्वायर जेड की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर 1 अपॉन के माइनस 3 अपॉन 4n। तो ये आ जाएगी आपके पास टर्म। तो इसमें देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका, दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ एनर्जी और ये वाला जो टर्म है आपकी, दिस is the relativistic this is the relativistic correction। ये आपकी relativistic correction है। और यहाँ पे जो आपका अल्फा है दिस इज गिवन एज 2 पाई ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी इंटू एच। और this is your Sommerfeld fine structure constant। ये आपका Sommerfeld fine structure constant है और इसकी जो वैल्यू है डेट इज 7.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो इसमें जो ये है हमारी रिलेटिविस्टिक करेक्शन टर्म, ये कितनी है? दिस इज
डेल्टा टी दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास आई है, इसमें यहाँ पे आपका n क्यूब आएगा जब आप इसको ये करेंगे. सो हेयर यू विल बी हैविंग n क्यूब. तो जो हमारे पास रिलेटिविस्टिक करेक्शन टर्म आई है वो कितनी आपकी r इंफिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड रेज़ टू पावर 4 अपॉन n क्यूब 1 अपॉन k माइनस 3 अपॉन 4n. तो इसमें अगर आप r इंफिनिटी को विच इज योर रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और अल्फा आपका है ही 7.30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. तो जो डेल्टा टी आ जाएगा दिस इज 5.84 Z4 अपॉन एन क्यूब 1 अपॉन के माइनस 3 अपॉन 4n. तो यहाँ पे जो डेल्टा टी आ रहा है हमारे पास दिस इज पॉजिटिव. नाउ सिंस k इज लेस देन और इक्वल टू n, तो जो टर्म वैल्यू है इट विल डिपेंड अपॉन k. ये आपका k डिपेंड करेगा फॉर डिफरेंट k ऑर्बिट्स ऑफ सेम n. इट विल डिपेंड अपॉन k. तो इसमें देखिए आपके पास क्या चीज है, इसमें हमें आपको फिगर दिखाते हैं. सो हेयर वी हैव ड्रॉन दी फाइन structure of, this shows the fine structure of H alpha line of Balmer series of hydrogen. तो इसमें देखिए ये हमारे पास क्या है, जब आपका n इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे हमने स्टेट्स लिए हैं फॉर n इज इक्वल टू 2, k की आपके पास दो वैल्यूज रहेंगी, k इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 2. ये आप इसे प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि फॉर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ n देयर विल बी सेम वैल्यू ऑफ k. अगर n आपका 2 है देन k विल बी इक्वल टू, इफ n इज इक्वल टू 2 k आपका 1 और 2 रहेगा. k की भी आपकी दो वैल्यूज रहेंगी. और यहाँ पे देखिए आपका जब आपका n 3 है k विल बी हैविंग 3 वैल्यूज 1 2 एंड 3. तो इसमें आपकी दिखाया गया है कि जब हमने आपका ये रिलेटिविस्टिक करेक्शन टर्म्स और सिलेक्शन रूल्स वगैरह इसमें हमने अप्लाई कर दिए. सिलेक्शन रूल इसमें क्या कहता है कि डेल्टा के जो है इट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1. तो जब हम आपके दीज अबव रिजल्ट्स आर अप्लाइड देन इट बिकम्स पॉसिबल टू obtain 2 strong components and 3 weak components of H alpha line. तो इसमें हमारे ये जो कंपोनेंट्स हैं n इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 3, ये जो आपके दिखाए गए हैं दीज आर योर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. ये आप अभी यहाँ पे ऐसे ही देखिए, ये हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ना है कि ये आपकी टर्म्स इस तरह से कैसे आती हैं. तो इसमें आपकी जैसे इसमें देखिए जो आपकी एक स्पेक्ट्रल लाइन है ये आपकी दो स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिट हो जाएगी. सो दिस इज शोइंग दी स्प्लिटिंग ऑफ योर स्पेक्ट्रल लाइंस. तो स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट वर दी शॉर्ट कमिंग्स ऑफ बोर सोमरफील्ड थ्योरी एंड हाउ वेक्टर मॉडल ऑफ एन एटम वाज इंट्रोड्यूस्ड. जब एक थ्योरी में आपकी कुछ कमी रह जाती है तो उसके वो इम्प्रूव करके फिर नेक्स्ट मॉडल आपका प्रपोज करा जाता है. So in our next video we will study about the shortcomings of Bohr-Sommerfeld theory and
your vector model of an atom. So this was all about this video. I hope you have understood and you are free to ask if you are having any problem in it.